نگراں حکومت عوام کی مشکلات سے ذات تعلق نہیں، مہنگائی جیسے بڑے چیلنج پر قابو پانے کے لیے معاشی صورتحال بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ پوری کوشش ہے کہ عوام کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں، ہماری امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ پاکستان کسی بھی صورت دہشت گردی اور انتہا پسندی جیسے رویوں کو برداشت نہیں کرے گا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو۔ ملک کی ترقی کے لیے متحد ہو کر اجتماعی کوششیں کرنا ہوں گی۔ معاشی ترقی میں تاجروں کا اہم کردار ہے۔ تاجر برادری کے مسائل حل کرنے کے لیے ہر ممکنہ اقدامات کریں گے۔ بجلی اور گیس سے متعلق مسائل اپنے وسائل کے مطابق حل کریں گے۔ معاشی ترقی کے لیے نعروں کے بجائے عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی کراچی میں کاروباری شخصیات سے گفتگو۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے پاکستان پیپلز پارٹی کے وفد کی ملاقات۔ سندھ خصوصاً کراچی کے درینہ مسائل کے حوالے سے آگاہ کیا۔ نگراں وزیر اعظم کو وفد کو مسائل کے حل کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کی یقین دہانی۔ وفد کی انوار الحق کاکڑ کو وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد، نیک خواہشات کا اظہار۔ صاف، شفاف اور آزادانہ انتخابات کا انعقاد الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ اپنے حلف کی پاسداری کریں گے، خلاف ورزی کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ نگراں کابینہ کا ہر رکن اپنے شعبے کا ماہر ہے۔ معیشت کو مستحکم کرنے کے ساتھ عوام کے پیسے کی بچت کریں گے۔ جڑا والا واقعہ عدم برداشت کا نتیجہ ہے۔ ملوث افراد کے خلاف سخت تعدیبی کارروائی کی جائے گی۔ نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی۔ نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کا نیکٹا ہیڈ کوارٹر کا دورہ۔ سیکیورٹی صورتحال، نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد، نیکٹا کی تنظیم نو پر بریفنگ۔ دہشت گردی اور انتہا پسندی کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا۔ قومی بیانیے کی وسیع پیمانے پر ترویج کی جائے گی۔ نیکٹا قابل عمل پالیسی اور حکمت عملی بنا کر تمام اداروں کو رہنمائی فراہم کرے۔ نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا جنوبی وزیرستان کے علاقے آسمان منزا کا دورہ۔ سیکیورٹی صورتحال اور انسداد دہشت گردی کے لیے جاری آپریشنز پر بریفنگ۔ آرمی چیف کی علاقے میں تعینات افسروں اور جوانوں سے ملاقات۔ شہداء ہمارا فخر ہے، ان کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ ملک میں امن و استحکام کے لیے شہداء کی قربانیاں ضرور رنگ لائیں گی۔ دہشت گرد اور ان کے سہولت کاروں کے مذموم ایجنڈے کو ناکام بنائیں گے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی توشہ خانہ کیس میں اپیلوں پر سماعت کل تک ملتوی۔ سیشن جج کے فیصلے میں مداخلت نہیں کر رہے۔ کل ہائی کورٹ میں سماعت کے بعد دن 1 بجے سپریم کورٹ سماعت کرے گی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز شو ایٹ 6 میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان ایاز اسلم، اور میں ہوں نازیہ خان۔ ٹاپ سٹوریز آپ جان چکے ہیں، تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم ٹو اسٹار اینڈ اسٹائل سیزن 4۔ 2 لیجنڈز کو انوائٹ کریں۔ مائی پرسنل فیوریٹ روبینہ اشرف، تھوڑی سی سیریسنس ہم ڈال سکتے ہیں۔ سپر اسٹار بشرا انصاری، ایسا کرتے کہ میں روبینہ لڑ پڑتے ہیں۔ کئی دفعہ جینون بھی ہوتے ہیں، جو کہ گولڈن ٹائم، گولڈن ٹائم اور بیسٹ ٹائم۔ کسی ڈرامے کو ریویو کر رہے ہیں تو ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ ایکٹنگ کا ٹائم آپ کیسے نکال رہی ہیں؟ بیکم سو بگ۔ چل چلیے دنیا دیو سے نکرے جتھے بندہ۔ بہت امپورٹنٹ ٹاپک جو کہ میرا خیال ہے آپ سب کے دل میں بھی ہے۔ یاد سے دیکھیے گا اسٹار اینڈ اسٹائل سیزن 4 عاصم یارچوانہ کے ساتھ آن پی ٹی وی ہوم۔ ستاروں کا جہاں۔
प्रोग्राम का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि कोई गलत फहमी में ना रहे, दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और अदम बर्दाश्त का हर सूरत मुकाबला करेंगे। कराची में ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हम अपने घर को अपने अंदाज में चलाएंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं आगा मसूद खालिद। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि जंगे फर्द वाहिद नहीं बल्कि कौमें लड़ती हैं। पाकिस्तान किसी सूरत दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और शिद्दत पसंदी जैसे रवैयों को बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान किसी सूरत में भी रेडिकलाइजेशन के सामने, एक्सट्रीमिज्म के सामने, इनटॉलरेंस के सामने सरेंडर नहीं करेगा। ये हमारा घर है और हमारे घर को हम अपने अंदाज से चलाएंगे। न हम अपने शुहदा को भूलेंगे, न हम अपने शुहदा की हुर्मतों को भूलेंगे, न उनकी कुर्बानियों को भूलेंगे और न आगे शहादत देने से गुरेज करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। हम अपनी मादरे वतन के चप्पे चप्पे की नामूस और हिफाजत की भरपूर सलाहियत रखते हैं। हम जंग के ख्वाहिशमंद नहीं हैं। अगर ऐसे इरादे को हमने भांपा कि वो हमारे 1 सेंटीमीटर की तरफ नज़र रखे हुए हैं, उस इरादे के लिए भी वील रिस्पॉन्ड एंड वील रिस्पॉन्ड टिल लास्ट। पाकिस्तान को अपने फाइनेंशियल चैलेंजेस को, अपने इंटरनल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को, इन पे गौर करते रहना चाहिए और जब तक अल्लाह के फजल से आपके मुहाफिज हैं, हारिस हैं, रातों को आराम से सोया करें। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि निगरान हुकूमत का क़याम आईनी तसलसल है। हमारी जिम्मेदारी इंतखाबी अमल में मावनत फराहम करना है। उन्होंने कहा कि जमहूरियत का हुस्न इख्तिलाफ राय के एहतराम में मुज़मिर है। हमारा काम इलेक्टोरल प्रोसेस को असिस्ट करना। डेमोक्रेसी की रूह, एसेंस मेरे ख्याल में डाइवर्सिफिकेशन में है, वो मेरे ख्याल में डाइसेंट में है, वो मेरे ख्याल में डिफरेंट व्यूज़ में है, लेकिन पीसफुल अंदाज में अपने कॉन्डक्ट को रखना दरअसल डेमोक्रेसी को कायम रखने के मुतरादिफ है। एक सवाल के जवाब में निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि अवाम को महंगाई से रिलीफ दिलवाना हमारी तरजीहात में शामिल है। हम अवाम से लाताल्लुक नहीं, पूरी कोशिश है कि अवाम के लिए अमली इक़दामात किए जाएं। हमारी टॉप प्रायोरिटीज़ में ये है गंदम की कीमतें, अगर इसको हम स्टेबलाइज हम कर सकें ताकि आम आदमी को कम से कम सस्ती रोटी मैसर हो। और ज़ाहिर है पेट्रोलियम मसनूआत जिसके साथ इन्फ्लेशन के तमाम अवामिल जुड़े हुए हैं, उस पे हमारे एनर्जी सेक्टर में एक पूरी एक्सरसाइज हो रही है। हम झूठे ख्वाब किसी को नहीं दिखाना चाहते। बलोचिस्तान के हवाले से पूछे गए सवाल के जवाब में अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि इस सूबे को गुज़िश्ता 7 दिहाइयों से इंतजामी, सियासी और दहशतगर्दी जैसे मसाइल का सामना रहा। खुलूस नीयत के साथ तमाम फरीकों को साथ लेकर बलोचिस्तान के मामलात को बेहतरी की जानिब ले जाया जा सकता है। बलूचिस्तान एक डाइवर्सिफाइड सूबा है जहाँ पे कोई एक स्टेक होल्डर नहीं है। जब हम एक होलसम अप्रोच, कलेक्टिव अप्रोच के तहत जाएंगे और एक दूसरे को सुनने की आदत डालेंगे, तो मेरे ख्याल में हल, अगर नीयत हमारी सबकी दुरुस्त हुई तो इंशाल्लाह निकल सकता है। इनहेरेंट राइट ऑफ वायलेंस लाइज विद द स्टेट। वो किसी गिरोह को, वो चाहे मजहब हुआ हो, फिरकावारियत पे हो, कौमियत पे हो, सियासी हो, गैर सियासी हो, उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। निगरान वज़ीर आज़म ने बडग्राम चेयरलिफ्ट रेस्क्यू के कामयाब ऑपरेशन पर मुसरत का इजहार करते हुए कहा कि इस वाक़ये ने पूरी कौम को यकजा होने का मौका फराहम किया। उन्होंने पाक फौज, जिले इंतजामिया और मकामी अफराद को मिलकर मासूम बच्चों को बाहिफाजत रेस्क्यू करने पर खिराज तहसीन पेश किया। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कराची में मारूफ सनतकारों से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क को सस्ती तवानाई की कमी समेत कई मुश्किलात का सामना है। हम अपने वसाइल और तवानाइयाँ यकजा करके ही मसाइल पर काबू पा सकते हैं। तफसील बता रहे हैं अरसलान असद। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने सिंध गवर्नर हाउस में सूबाई और वफाकी काबीना के हमरा मुल्क के मारूफ ताजरों और सनतकारों से मुलाकात की और मुल्क की माशी इस्तेहकाम के लिए मुस्तकबिल के लाहे अमल के हवाले से उनकी तजावीज़ सुनी। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि निगरान हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी बैनुल-अक़वामी मुआहिदों की पासदारी करते हुए माशी पॉलिसियों के तसलसल को यकीनी बनाना और मुल्क में शफाफ इंतखाबात करवा के इक़्तिदार नई मुंतखब हुकूमत के हवाले करना है। उन्होंने कहा कि कराची मुल्क का सनती मरकज़ है जहाँ के ताजर और सनतकार मुल्क में रोजगार के मौके पैदा करने में कलीदी किरदार के हामिल हैं।
انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ ہمارے ملک میں بیروزگاری، مہنگائی اور خوراک کی کمی سمیت مسائل اور چیلنجز بہت ہیں، تاہم قدرت نے ہمیں وسائل سے بھی نوازا ہے۔ اگر معاشرے کے تمام طبقات مل کر آگے بڑھیں تو 25 کروڑ آبادی والے اس ملک کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ Let's discover a Pakistani dream. Let's discover a Pakistani branding. اور یہ میں نہیں کر سکتا ہوں، یہ اصل میں آپ نے کرنا ہے۔ Join it together. ہمیں ایک دوسرے کی جو بات سننے کا عمل ہے اس کو شروع کرتے ہیں۔ جو پریکٹیکل سٹیپس آپ سمجھتے ہیں کہ اس انٹائر اکنامک ریوائول کے لیے لازمی ہے، اس کی انیشیشن کیسے کرنی چاہیے۔ لیٹس ٹرانسفارم، لیٹس امپروو دس نیشن آف 2500 ملین پیپل۔ اس کا مجھ پہ بھی قرض ہے، اس کا آپ پہ بھی قرض ہے۔ نگران وزیر اعظم نے تاجروں اور صنعتکاروں پر زور دیا کہ وہ ملکی مسائل سے پوری طرح آگاہ ہیں، وہ صورتحال میں بہتری کے لیے تجاویز دیں۔ نگران حکومت کے ہر وزیر کے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں۔ انہوں نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ سمندر پار پاکستانی ہمارا اثاثہ ہیں، جن کے دل پاکستانیت کے جذبے سے سرشار ہیں۔ ہماری جو اوورسیز کمیونٹی جو سروسز کی کیٹیگری میں ریمیٹنسز کی صورت میں ہمیں اور آپ کو فارن ریزروز میں جب بھی ہمارا کوئی فلوئڈ سچویشن آتی ہے وہ ہمیں ریسکیو کرتے ہیں۔ اٹس دیئر بلڈ اینڈ سویٹ اینڈ وی ریسپیکٹ دیم۔ نگران وزیر اعظم نے ملک میں رفاہی اور فلاحی کاموں کے لیے سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایسے ادارے معاشرے میں دوسروں کے لیے قابل تقلید مثال ہیں۔ اس موقع پر تاجر رہنماؤں نے وزیر اعظم کو ٹیکسوں کی شرح میں اضافے، ٹیکس ریفنڈ میں تاخیر، مہنگی بجلی اور درآمدات و برآمدات کی راہ میں حائل انتظامی مسائل سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم کو کراچی میں امن و امان کی صورتحال سے بھی آگاہ کیا گیا، جس پر وزیر اعظم نے چیف سیکرٹری سندھ کو ہدایت کی کہ تمام متعلقہ اداروں کے تعاون سے شہر قائد میں امن و امان بہتر کیا جائے۔ ارسلان صدقی ٹخیل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں کہ اپنی مقررہ مدت کے دوران ملک کے لیے جو کچھ ہو سکا کریں گے۔ کاروباری برادری کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے۔ انہوں نے یہ بات کراچی میں چھوٹے اور درمیانے درجے کی صنعتوں سے تعلق رکھنے والی کاروباری شخصیات سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ مزید تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں علی اصغر ارباب۔ تاجر برادری کے نمائندوں سے خطاب کرتے ہوئے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ کراچی اصل پاکستان ہے، دوبارہ نیا کراچی بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل و کرم کے ساتھ اور دلوں کو ہمارے جوڑے گا اور پھر دوبارہ ایک نئے کراچی کا آغاز ہوگا، ایک نئے پاکستان کا آغاز ہوگا انشاءاللہ، اور وہ دراصل وہی پاکستان ہوگا جس کے لیے اقبال نے خواب دیکھا، جس کے لیے جنہوں نے جد و جہد کی۔ نگران وزیر اعظم نے کہا کہ مہنگائی پر قابو پانے کے لیے پرائس کنٹرول کمیٹیوں کو ضلعی اور تحصیل کی سطح پر متحرک کیا جائے۔ تاجر برادری سے بات کرتے ہوئے نگران وزیر اعظم نے کہا کہ ذخیرہ اندوزی اور کارٹیل عناصر کے خلاف جامع پالیسی بنائی جائے گی۔ ٹیکس سے متعلق تاجر برادری کے مسائل کے حل کے لیے نگران وزیر اعظم نے چیئرمین FBR کو ہدایت کی کہ ایک ہفتے میں تاجر برادری سے ملاقات کر کے مسائل سن کر حل کیے جائیں۔ نگران وزیر اعظم نے کراچی میں امن امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے چیف سیکرٹری کو ہدایت کی کہ وہ پولیس، رینجرز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ ملاقات کرے۔ کراچی میں پولیس کی موجودگی نظر آنی چاہیے اور کراچی میں امن امان کی صورتحال ہر حال میں بہتر کی جائے۔ سندھ کے گورنر کامران ٹسوری نے کراچی آمد پر نگران وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ نگران وزیر اعظم نے تاجر برادری کے مسائل سنے اور ان کے حل کے لیے اپنے تعاون کا یقین دلایا۔ علی اصغر ارباب، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے پاکستان پیپلز پارٹی کے وفد نے کراچی میں ملاقات کی۔ اس ملاقات میں وفد نے نگراں وزیر اعظم کو سندھ بالخصوص کراچی کے درینہ مسائل کے حوالے سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے وفد کو یقین دلایا کہ تمام مسائل کے جلد از جلد حل کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ وفد نے انوار الحق کاکڑ کو وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ملاقات میں نگراں وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات مرتضیٰ سولنگی بھی موجود تھے۔ وفد میں میئر کراچی مرتضیٰ وہاب، قائم علی شاہ، سید مراد علی شاہ اور سعید غنی شامل تھے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور سندھ کے نگراں وزیر اعلیٰ ریٹائرڈ مقبول باقر کے درمیان کراچی میں ملاقات ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کے ساتھ مکمل تعاون کے عزم کا اعادہ کیا۔ نگراں وزیر اعظم نے صوبائی حکومت کو انتظامی امور کی انجام دہی اور درپیش مسائل کے حل کے لیے وفاقی حکومت کے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔
निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से मारूफ फनकार ज़ाहिर लहरी ने मुलाकात की और उन्हें बलूचिस्तान में फनकारों को दरपेश मसाइल के हवाले से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने ज़ाहिर लहरी को फनकारों के लिए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। और निगरान वज़ीर आज़म ने शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में पौधा लगाया। इस मौके पर निगरान वज़ीर आज़म को शजरकारी मुहिम के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। शजरकारी मुहिम के आगाज़ पर गुफ्तगू करते हुए निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली के असरात से महफूज रहने के लिए तमाम फरीकैन को इक़दामात उठाना होंगे। शजरकारी के ज़रिए मुस्तक़बिल में जंगलात को फ़रोग़ दे सकते हैं, जिसके बाइस माहौलियाती तब्दीली के ख़तरात से बेहतर तरीके से निपटा जा सकता है। Climate change is now an existential threat globally. कौमी रियासतों के जो नेशनल सिक्योरिटी पैराडाइम है उसमें जो क्लाइमेट चेंज का कंपोनेंट है दैट शुड बी पार्ट ऑफ दैट। ये ज़मीन की जो नेमत हमें अता हुई है, ये प्लानट के जो हुकूक हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए जो नबातात के हुकूक हैं उनकी इंस्पिरेशन भी हमें कुरान से मिलती है। हम इन नेमतों को जो कुफरान का ज़रिया बाज़ औक़ात बन जाते हैं, ये कुफरान नेमत दरअसल क्लाइमेट चेंज में अपने नेचुरल हैबिटाट को जो अब्यूज़ करना है, ये भी कुफरान नेमत के ज़िम्रे में ही आता है। सारे के सारे जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, इसके डिफरेंट एक्सप्रेशन मुझे तो बाज़ औक़ात यही लग रहा होता है कि जो नेचर की सोल की बेकरारी है वो अपना इजहार हमारे साथ कर रही होती है। वी वांट टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स मिटिगेटिंग द इल डन बाय द क्लाइमेट चेंज। अपना हिस्सा उसमें हम ज़रूर डालेंगे। आई अर्ज ग्लोबल कम्युनिटी आल्सो टू प्ले देयर पार्ट एंड देयर रोल। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं कि साफ, शफाफ, गैर जानिबदाराना और आज़ादाना इंतखाबात का इनेकाद इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन एक्ट के तहत सियासी जमातों को मुहिम के लिए 54 दिन देने पड़ेंगे। निजी चैनल से गुफ्तगू करते हुए निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि हम अपने हलफ की पासदारी करेंगे, खिलाफ वर्जी का सोच भी नहीं सकते। सदर ममलकत आइन के तहत पार्लियामान का हिस्सा हैं, हमारी हुकूमत उनके मनसब का एहतराम करती है। उन्होंने कहा कि हम किसी भी सियासी जमात के हक और मुखालफत में नहीं हैं। अगर किसी के खिलाफ कानून, इदारे और अदालतें कदम उठाती हैं तो रोकेंगे नहीं। निगरान वफाकी वज़ीर ने कहा कि 16 रुकनी काबीना का हर रुकन अपने शोबे का माहिर है। हम मईशत को मुस्तहकम करेंगे और आवाम के पैसे का ज़िया नहीं किया जाएगा। बटग्राम में रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से निगरान वज़ीर इत्तलात ने कहा कि चेयरलिफ्ट में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने के लिए जवानों ने बहादुरी का मुजाहरा किया। इस हवाले से मकामी अफराद की कोशिशें भी काबिल तारीफ़ है। मुर्तज़ा सोलंकी का कहना था कि जड़ावाला का वाक़या मुआशरे के अंदर अदम बर्दाश्त का नतीजा है। वाक़े में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान और अमेरिका ने इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक किया है। इस्लामाबाद में निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने मुलाकात की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख़याल किया गया। निगरान वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर अनीक अहमद ने कहा है कि सानेह जड़ावाला पर बहुत अफसोस हुआ, उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। जड़ावाला में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे दुख और सुख मुश्तरक हैं। इस्लाम किरदार, अखलाक और प्यार और मोहब्बत की बात करता है। हमें बहुत से चैलेंजेस का सामना है। किसी भी मामले पर फौरी रद्दअमल नुकसानदेह है। हुकूमत अक़लियतों को तमाम बुनियादी हुकूक की ज़मानत देती है। कबल अज़ीं निगरान वज़ीर मज़हबी उमूर अनीक अहमद की ज़ेर सदारत जड़ावाला में बैनुल मज़ाहिब इजलास में हिंदू, सिख और मुस्लिम रहनुमाओं ने मकामी मसीही आबादी से इजहार यकजहती किया। इस मौके पर निगरान वफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान की अक़लियती बरादरी हमारे झंडे के सफ़ेद रंग की नुमाइंदगी करती है। मकामी मसीहियों की बहाली और दोबारा आबादकारी को जल्द अज जल्द मुमकिन बनाया जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी ने मसीही बरादरी से यकजहती करते हुए कहा है कि सानह जड़ावाला कौमी अलमिया है। इस्लाम अक़लियतों से हुस्न सलूक का दर्स देता है। कोई मज़हब भी दहशत और वहशत फैलाने का हुक्म नहीं देता। तफसील बता रहे हैं फहद अजीज। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने बिशप अरशद जोसेफ के हमरा इस्लामाबाद चर्च में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सानेहा जड़ावाला इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। जिन लोगों ने ये अमल किया वो किसी भी मजहब के नुमाइंदे नहीं। उन्होंने कहा कि जड़ावाला वाक़े के हवाले से 24 रुकनी कमेटी तश्कील दी है जो जड़ावाला के तमाम पहलुओं की तहकीकात करेगी। सबका मुत्तफिका मुतालबा है कि जो भी मुजरिमीन हैं स्पीडी ट्रायल करें, उन्हें सजा दे।
तौहीन किसी भी मजहब के मुकद्दसात की काबिल कबूल नहीं है। हमने एक कमेटी बनाई है, हम रोजाना की बुनियाद पर देखेंगे और पूरे मुल्क में मुश्तरका इज्तिमाआत करेंगे, अवामुन्नास को अवेयरनेस दी जाएगी। सबसे बड़ा मसला यह है कि लोगों को मालूम हो कि तौहीन है क्या और हमारा आपस का ताल्लुक क्या है। बिशप अरशद जोसेफ ने कहा कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है। मसीही बरादरी मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। उन्होंने सानेहा जड़ावाला की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि जो लोग इस वाक़े में मुलविस हैं इनको सख्त सजा दी जाए। मुजाहिब जो है अमन और मोहब्बत का जो है वो दरस देते हैं, मगर ऐसे वाक़यात बाज़ औक़ात जो है लोगों को मज़ाहिब से बागी कर देते हैं। मुल्क में कानून और इंसाफ की बालादस्ती जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन बेहद ज़रूरी है और हम इंसाफ के लिए पुकार रहे हैं। नायब अमीर जमात इस्लामी मियां मोहम्मद असलम और दीगर मुकर्रीन ने भी सानिया जड़ावाला की मजम्मत की और कहा कि हमारे लिए तमाम मज़ाहिब काबिल एहतराम हैं। हमारा पैगाम रवादारी और भाईचारे का है। फहद अजीज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की नाज़रीन अगर बात की जाए तो मुआशरे में इसके मुस्बत रुझानात पैदा करने की इंतहाई अशद ज़रूरत है। यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर हमने देखा कि जैसे ही सानहा जड़ावाला हुआ वहाँ पर मौजूद जो मुस्लिम बरादरी है उसकी जानिब से नाज़रीन हमने देखा कि मसाजिद जो है उनको खोल दिया गया ताकि जो हमारे मसीही भाई हैं वो वहाँ पर जाकर अपनी इबादत जो है उसे कर सकें। और मौजूदा दौर के अंदर बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी जो है वो इंतहाई ज़रूरी हो चुकी है। यही वजह है कि चाहे उलमा इकराम हो, हुकूमती सतह पर हो, हम देखते हैं कि इसके इक़दामात उठाए जा रहे हैं ताकि मुआशरे के अंदर बैनुल मज़ाहबी हम आहंगी जो है उसे फ़रोग़ दिया जा सके। बिल्कुल अयाज़, आपने वजह फरमाया। जड़ावाला के जो वाक़या पेश आया है इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है और पाकिस्तान में हर सतह पर इसकी मजम्मत की जा रही है। तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा, तमाम जो वॉक ऑफ लाइफ से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उन सब ने इस वाक़े को एक कभी फेल करार दिया है। यकीनी तौर पे ये पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस उजागर करने की किसी भी तौर पे ये कोई मस्बत सोच नहीं है जिसको हम पजीराई कर सकें या हम ये कह सकें कि किसी भी तरह से इस अमल को हम जो है वो पजीराई कर सकें। यकीनी तौर पे एक जत्था या एक गिरोह अगर इस किस्म का कोई कभी फेल या इस तरह की कोई गलत हरकत करता है तो उसको पूरे माशरे को उसको लपेट में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमने ये देखा कि पाकिस्तान में अक़लियतों के हकूक़ की शुरू दिन से बात हुई है। कायद आज़म भी इस पर बहुत ज़ोर देते रहे हैं। अभी हाल ही में अगर हम देखें कि निगरान वज़ीर आज़म ने भी जब वहाँ का दौरा किया तो उन्होंने कहा कि ये हम किसी भी तौर ये इजाज़त नहीं दे सकते कि अक़लियतों के हकूक़ को गस्ब किया जाए या उनको किसी तरह से तकलीफ पहुँचाई जाए, क्योंकि अक़लियतें पाकिस्तान के हुस्न में इजाफा करती हैं और पाकिस्तान का एक बहुत कीमती असासा है। पाकिस्तान की तामीर नौ में, पाकिस्तान की तरक्की में, पाकिस्तान का मस्बत तशख़्ख़ुस उजागर करने में अक़लियती बरादरी का जो किरदार है उसको हम कदर की निगाह से देखते हैं। और इस बात का अंदाज़ा हम इससे भी लगा सकते हैं नाज़िया कि पाकिस्तान के झंडे में मौजूद जो सफ़ेद रंग है वो इस बात की गवाज़ी करता है कि पाकिस्तान के अंदर बसने वाली जो अक़लियतें हैं वो यहाँ पाकिस्तान के लिए किस कदर अहमियत की हामिल हैं। यही वजह है कि आप पाकिस्तान के तमाम शोबाजात उठा के देख लें, वहाँ पर आपको अक़लियतों के लिए एक मखसूस कोटा जो है वो नज़र आता है, जहाँ पर चाहे वो नौकरियों की सूरत में हम बात कर लें या दीगर सहूलियात के हवाले से अगर हम बात करें तो एक मखसूस कोटा जो है वो अपनी अक़लियती बरादरी के लिए रखा गया है ताकि उन्हें किसी तरह ये एहसास ना हो कि वो अक़लियत में है। शायद इस वजह से उनके साथ ये सलूक किया जा रहा है। और जिस तरह आपने भी फरमाया कि एक जत्था, एक मखसूस जत्थे को लेकर पूरे मुल्क की सोच को जो है वो डेवलप कर लेना यकीनी तौर पर ये किसी भी तौर पर जो है वो अक्लमंदाना फैसला नहीं है। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की जब हम बात कर रहे हैं तो ये किस कदर ज़रूरी है, इस पर हम बात करने के लिए रब्ता किया है। मारूफ स्कॉलर हैं और चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल हैं डॉक्टर किबला अयाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर किबला अयाज साहब, बहुत शुक्रिया PTV न्यूज़ को वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की अगर बात की जाए तो मुख्तलिफ अदयान से ताल्लुक़ रखने वालों को करीब लाने में ये किस तरह मुआविन साबित हो सकती है और इसके मुआशरे पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अहम सवाल है। जैसा कि जाहिर है कि दुनिया इस वक्त एक आलमी गांव बन गई है, ग्लोबल विलेज। तो अब तो इस बात की ज़रूरत है कि तमाम इंसान एक दूसरे के साथ रवादारी, हुस्न तामुल और इर्तिबात के साथ रहें। तो इस हवाले से मज़ाहिब के पैरोकारों के दरमियान भी इस बात की ज़रूरत है कि रवादारी हो, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी हो, इर्तिबात हो, अच्छा ताल्लुक़ हो। और यही वो रास्ता है कि जिसके ज़रिए मुआशरे जो हैं वो पुरसुकून बनते हैं
اور جب पुरअमन और पुरसुकून मुआशरे हों तो एक बेहतर मईशत सामने आती है और लोग खुशहाल होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है और बिलखुसूस पाकिस्तान के तनाजुर में तो इसकी अज़हद ज़रूरत है आजकल के दौर में। अच्छा डॉक्टर साहब, जरा ये भी फरमाइएगा सर कि दुनिया का कोई भी मजहब हो वो मुतशद्दिद रवैयों को पसंद नहीं करता, उसके फ़रोग़ की बात नहीं करता, उसकी तायद नहीं करता। फिर ये जो लोग हैं जो इस तरह का रवैया इख्तियार करते हैं, इनकी ज़हनी कैफियत क्या होती है सर? क्या ये मेंटली सिक लोग हैं? ये किस तरह का रास्ता अपनाते हैं? और जो लोग इस रास्ते पर चल पड़ते हैं उनके लिए अहकामात क्या हैं फिर? बिल्कुल, ये मजहब तो हमेशा से इस मकसद के लिए आए हैं कि मुआशरे को एक तरतीब दें, इंसानियत के एहतराम को यकीनी बनाएं और पूरा अमल जो है इंसानी तारीख में मज़ाहिब का किरदार यही रहा है। और जो लोग इसके खिलाफ जाते हैं तो वो दरअसल अपने अपने मज़हब पर अमल नहीं करते बल्कि अपने अपने मज़ाहिब की तालीमात की खिलाफ वर्जी करते हैं। तो इस बात की ज़रूरत है कि मुकालमे के ज़रिए, दलील के ज़रिए, तरगीब के ज़रिए उनको समझाया जाए। और अगर वो नहीं समझते और इंसानियत को और मुआशरे को नुकसान देते हैं तो कानून इसी मकसद के लिए होता है। तो फिर कानून को अपना रास्ता बनाना चाहिए और कानून को हरकत में आना चाहिए। ऐसे लोगों को बहुत सख्त सजाएं देनी चाहिए। ऐसे लोगों को बहुत सख्त सजा देनी चाहिए। डॉक्टर किबला अयाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल। आपके वक्त के लिए कुछ मजीद खबरें शामिल करते हैं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि 2 निजी बैंक सार्फिन की रजामंदी के बगैर ऑनलाइन फंड्स ट्रांसफर से मुतालिक कवायद व ज़वाबित में लापरवाही का मुर्तकिब हुए, जिसके बायस जालसाजों ने 4 सार्फिन के 41 लाख रुपए हड़प कर लिए। लिहाजा बैंक मतलूबा रकम की वापसी यकीनी बनाए। सदर मुमलिकत ने कहा कि रकम का नुकसान इस वजह से हुआ कि बैंक्स ने खातादारों की दरख्वास्त के बगैर EFT को ऑपरेशनल कर दिया, इसलिए वो सारिफीन के नुकसान को पूरा करने के जिम्मेदार हैं। सदर ने इस सिलसिले में मुस्लिम कमर्शियल बैंक और अलाइड बैंक लिमिटेड की जानिब से बैंकिंग मुहतसिब के हुक्म के खिलाफ दायर की गई दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए बैंक्स को सारिफीन का नुकसान पूरा करने का जिम्मेदार ठहराया। सदर मुमलिकत ने इस सिलसिले में बैंकिंग मुहतसिब के फैसलों के खिलाफ मुस्लिम कमर्शियल बैंक की 3 और अलाइड बैंक की 1 अपील मुस्तरद कर दी और मुतासरा सारिफीन को 41 लाख रुपए अदा करने की हिदायत की है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने जनूबी वजीरिस्तान के इलाके आसमान मंजा के करीब शेरवंगी का दौरा किया है। ये वो इलाका है जहां 6 बहादुर जवानों ने दहशत गर्दों के साथ लड़ते हुए गुज़श्ता रोज जाम शहादत नोश किया था। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की आमद पर उन्हें इलाके की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल समेत खुफिया मालूमात की बिना पर किए जाने वाले इंसदाद दहशत गर्दी ऑपरेशन से मुतालिक ब्रीफ किया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इलाके में मामूर अफसरों और जवानों से मुलाकात की और दहशत गर्दी की लानत के खात्मे के लिए उनके आहनी अज़्म को सराहा। इस मौके पर आर्मी चीफ ने कहा कि शुहदा हमारा फ़ख्र हैं और पाकिस्तान में मुकम्मल अमन इस्तेहकाम के क़याम के लिए हमारे शुहदा की कुर्बानियाँ ज़रूर रंग लाएंगी। आर्मी चीफ ने जोर दिया कि एक मनफी एजेंडे के तहत पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के ख़्वाहां दहशत गर्दों, उनके सहूलतकारों और मनसूबा साजों को रियासत पाकिस्तान के सामने सरेंडर करना पड़ेगा। इससे कबल शेरवंगी आमद पर आर्मी चीफ का इस्तकबाल कोर कमांडर पेशावर ने किया। ISPR के मुताबिक 22 और 23 अगस्त की दरमियानी शब जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके आसमान मंजा के करीब शेरवंगी में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशत गर्दों को मौसर जवाब दिया, जिसके नतीजे में एक दहशत गर्द जहन्नुम वासिल हुआ। मारे जाने वाले दहशत गर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया है। ये दहशत गर्द इलाके में मुख्तलिफ दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस था। इलाके में मौजूद किसी भी दहशत गर्द के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन किया जा रहा है। नाज़रीन, बहावलनगर में 35 साल बाद आने वाले सैलाबी रेले ने दरिया सतलुज के दोनों अतराफ के सैकड़ों देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। जिला के मुतादिद बंद टूटने से मजीद दर्जनों देहात भी मुतासर हुए हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे शहराज दौरानी जो कि बहावलनगर शहर के करीब भोका पतन में मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। शहराज, आगाह कीजिएगा, हेड सुलेमान की, हेड इस्लाम और दीगर मकामात पर दरिया सतलुज में सैलाबी पानी की क्या सूरत हाल है? शहराज, क्या आप हमारे साथ मौजूद हैं?
शहराज दुरानी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तमाम तर सूरत हाल जानने की कोशिश करते हैं। आपको आगाह करें कि 35 साल के बाद बहावलनगर में आने वाला सैलाबी रेला, जिसकी वजह से दरिया सतलुज के दोनों अतराफ जो हैं वो सैकड़ों देहात ज़ेर आब आ चुके हैं। ज़िला के मुतअद्दिद बंद टूटने की वजह से मज़ीद दर्जनों देहात जो हैं वो मुतासर भी हुए हैं। एक तरफ जहाँ ये सूरत हाल है तो दूसरी जानिब पाक फौज की जानिब से और दीगर जो इमदादी इदारे हैं उनके जानिब से इमदादी सरगर्मियाँ जो हैं वो भी जारी हैं और लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। बिल्कुल जी, बहावलनगर में 35 साल के बाद ये सैलाबी रेला दाखिल हुआ है। दरिया सतलुज के दोनों अतराफ के जो सैकड़ों देहात हैं इस वक्त वो ज़ेर आब आ चुके हैं। मुतादिद बंद भी टूटे हैं जिसकी वजह से दर्जनों देहात जो है वो मुतासिर हुए हैं। हमारे नुमाइंदे शिराज दुरानी इस वक्त बहावलनगर शहर के करीब हुक्का पतन पे मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसील जानते हैं। शिराज, आई होप आप हमें सुन पा रहे हैं इस वक्त। अगर सुन पा रहे हैं तो आगाह कीजिएगा कि हेड सलमान की, हेड इस्लाम और दीगर मुकामात पे दरिया सतलुज में सैलाबी पानी की इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस तरह है कि जो ताज़ा तरीन सूरत हाल उसके मुताबिक गुज़श्ता जो 2 रोज़ गुजरे हैं उसमें तो हेड सुलेमान की के मकाम पर तो जो पानी का जो बहाव था वो बहुत उसमें कमी आई है, वाज़े तौर पर कमी है। तकरीबन 50,000 क्यूसेक तक की पानी कमी आई है। लेकिन अगर आगे हम बात करें, जब यही पानी 60-70 किलोमीटर आगे बहाव के बाद जब यहाँ पर पहुँचा, ये मैं भूखा पतन के मकाम पर जिस तरह मौजूद हूँ, तो यहाँ पर सूरत हाल ये है कि यहाँ पर पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है गुज़श्ता 2 रोज़ में। और इस वक्त भी यहाँ पर 70 से 80 हज़ार क्यूसेक का जो रेला है वो यहाँ से गुजर रहा है, ज़िला जो आपका बहावलनगर है वहाँ से। और इसके अलावा सूरत हाल ये है कि गुज़श्ता 3 रोज़ के दौरान रेस्क्यू 1122 ने 7,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल किया है। और काफ़ी ऐसी तादाद भी है, हज़ारों की तादाद में, जो लोग अपनी मदद आपके तहत जो है वो महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। जहाँ तक हम बात करें इमदादी कैंपों की, तो पूरे ज़िला बहावलनगर में 30 से ज़ायद जो इमदादी कैंप्स हैं वो कायम किए गए, जहाँ पर जो मुतासरीन हैं उनको वहाँ पर खुराक और खाने पीने की दूसरी अशिया के अलावा उनके जानवरों के लिए भी वंडा, चारा और दीगर जो तिबी सहूलियात है वो वहाँ पर फराहम की जा रही है। यहाँ पर वर्थ मेंशनिंग है कि ये जो दरियाए सतलुज है ये 35 साल के बाद इतना बड़ा सैलाबी रेले ने इस इलाके का रुख किया है। सिंतास मुआहदे के तहत यहाँ पर जो पानी है इसकी बंदिश की गई थी दरिया सतलुज की, उन 3 दरिया में से एक है। लेकिन बदकिस्मती से जब भी भारत की तरफ पानी जब वहाँ पर वाफिर मिकदार में हो जाए तो वो वहाँ से जो पानी है उसका बहाव इस तरफ कर दिया जाता है और मजबूरी में ये पानी जो है वो इस तरफ आता है बहावलपुर डिवीजन की तरफ। तो इसी पानी की वजह से, क्योंकि मैंने बताया कि 35 सालों के दौरान पहले कभी इस तरह का पानी नहीं आया, तो लोगों ने यहाँ पर अपनी इस दरियाई इलाके में अपनी फसलें वगैरह उगाई हुई थी। गो के बेशक वो गैर कानूनी तौर पर थी और लोगों ने रिहाइश भी यहाँ पर की हुई थी। तो कई ऐसी आबादियाँ हैं जो कि इस पानी की नज़र हो गई हैं और लोग जो हैं वो कसम पुरसी की हालत में चले गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे शहराज तमाम तर सूरत हाल से। और उधर भारत की जानिब से आने वाला जो सैलाबी रेला है वो बहावलनगर की हदूद में दाखिल हो गया है। ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से 30 फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं। मजीद वहाँ पर क्या डिटेल है, क्या तफसीलात हैं, क्या हालात हैं, हमारे नुमाइंदे राना फैसल रहमान हमें बताएंगे। भारत की जानिब से जो दरियाए सतलुज में पानी जो छोड़ा गया था उसने जो अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। इस वक्त हेड सलमान की पर जो है पानी की सतह जो है मुसलसल बुलंद होती दिखाई दे रही है। जिला इंतजामिया जो है मुतहरिक दिखाई दे रही है, तमाम तर इंतजाम जो है मुकम्मल कर लिए हैं। तमाम जो कैंप्स जो लगाए हैं जिला इंतजामिया की जानिब से, यहाँ पर जो है वक्तन फवक्तन जो है अफसरान का जो विजिट भी जो है जारी है। इस वक्त जो है रेस्क्यू इमरजेंसी ऑफिसर रीजन के जो यहाँ पर पहुंचे हैं और तमाम तर इंतजाम का जायजा लिया। बहुत अरसे के बाद ये पानी हमारे पास आया है। जो हफ्ता 10 दिन पहले आया था पानी वो 80-85 हज़ार के करीब था, लेकिन अभी 1.5 लाख के करीब पानी चल रहा है और अभी एक्सपेक्टेशन यही है कि अभी मज़ीद पानी बढ़ेगा। और इसी चीज़ को देखते हुए पंजाब गवर्नमेंट ने ये अलर्ट जारी किया था तमाम जो सतलुज के बेल्ट के अंदर जितने भी अतला हैं, और वहाँ पे तकरीबन मैक्सिमम लोगों को वहाँ से एवैक्यूएट कर लिया गया है। तो अभी पानी ने मज़ीद बढ़ना है। आपके तवज्जुह से ये मैं लोगों से अपील करूँगा कि अगर कोई आप इस चीज़ का वेट ना करें कि पानी ये उतरेगा, अभी तो पानी ने बढ़ना है, उसके बाद जाके हफ्ता 10 दिन के बाद रिसीव करना शुरू होगा। और हम इंशाल्लाह भरपूर तैयारी है हमारे, और जैसे ये पानी नीचे जाएगा बावलपुर की तरफ, वहाँ पर भी हमारी टीमें रेडी हैं। बहावलनगर की जो तहसील है वहाँ पर जो है विजिट किया है, तमाम तर इंतजाम का जो है जायजा लिया है और इन्होंने जो है मीडिया के तवज्जुह से जो है अवाम को पैगाम भी दिया है, रिहायशियों को, दरियाई पट्टी के लोगों को, कि लोगों को जो नकल मकानी शुरू कर देनी चाहिए जवान, और जहाँ पर जो परेशानी हो रही है वहाँ पर जो कॉल करें। हमारे जो नौजवान जो हम वक्त जो है वो तैयार हैं।
नाज़रीन, दरिया सतलुज में भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के बाद इस वक्त ऊंचे दर्जे का सैलाब है। रेस्क्यू 1122 और पाक आर्मी की टीमें पानी में घिरे हुए अफराद को रेस्क्यू कर रही हैं। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अशरफ इस वक्त दरिया सतलुज पर अटारी के मकाम पर मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? दरिया सतलुज में सुलेमानकी के मुकाम पर पानी की आमद 1,55,000 क्यूसेक और अखराज भी 1,55,000 क्यूसेक है। और जिस मुकाम पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ पर पानी का बहाव 1,10,000 क्यूसेक है। मुमकिन सैलाब के पेश नज़र रेस्क्यू 1122 की जानिब से 40 कश्तियाँ और 170 से ज़ायद जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। रेस्क्यू टीमों ने आज मुख्तलिफ मुकामात से 13,000 अफराद और मुख्तलिफ मुकामात से 3,000 अफराद और अटारी से 700 अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया है। तकरीबन 90% के करीब हमने आबादी को रेस्क्यू कर लिया है। जो बाकी मानदा कुछ लोग जो अपने माल के और सामान वगैरह की हिफाजत के लिए वहाँ पे रुके थे, उनके लिए भी कोशिशें की जा रही हैं और अभी हमारा जो रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। आज के दिन भी आपने तकरीबन 750 के करीब जो है ना लोगों को वहाँ से निकाला है और हमारी कोशिश है कि कोई भी वहाँ पे लोग मौजूद ना रहे। मजमूई तौर पर अब तक 13,000 से ज़ायद अफराद जिनमें ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया है। रेस्क्यू वाले आए थे, इन्होंने साढ़े बच्चे कड्ढे ने बाहर, साढ़े मकान तबाह हो गए ने, इन्होंने सानू महफूज जगह ते पहुँचाया है। सारे जिहड़े घर पानी दे विच डुब चुके ने तो कोई चीज़ नहीं रही, ना मकान रहा है ना घर रहा है। लेकिन सानू आप जिहड़े लांचा वाले ने इन्हें सानू उत्थों कड्ढे जाना बचाइयां, लेकिन वो सानू महफूज जगह ते पाया, रोटी भी खाना भी खवा रहा है। डायरेक्टर जनरल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पंजाब इमरान कुरैशी ने कमिश्नर साहिवाल डिवीजन शोएब इकबाल सैयद के हमरा अटारी के मुकाम पर कायम फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा किया। उन्होंने हेल्थ काउंटर और रेस्क्यू काउंटर पर दस्तयाब अद्वियात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर जीशान हनीफ ने इन्हें ब्रीफिंग दी। इस मौका पर उन्होंने रेस्क्यू ऑफिसर जफर इकबाल चौधरी और उनकी टीम की काविशों को सराहा। दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब के पेश नज़र ज़िली इंतजामिया ने लोगों से अपील की है कि वो फौरी तौर पर दरिया से नकल मकानी करके महफूज मुकाम पर मुंतकिल हो जाएं। मोहम्मद अशरफ, PTV न्यूज़, रिनाला खुर्द, उकाड़ा। और गुज़िश्ता साल आने वाले सैलाब मुतासरीन के लिए केटी बंदर के पास गाड़ू में तमाम सहूलियात से आरास्ता मॉडल विलेज कायम कर दिया गया है। इस मॉडल विलेज में कारोबार के लिए सहूलियात भी मौजूद हैं। मज़ीद तफसील जानते हैं मिर्ज़ा हसन बेग से। गुज़िश्ता साल सैलाब ने 2 लाख से ज़्यादा अफराद को मुतासर किया था, जो मुख्तलिफ इमदादी कैंपों में और बंदों पे उन्होंने पनाह ली थी। उसके बाद रिहेबिलिटेशन का काम हुआ था, जो सिंध हुकूमत ने उनको बहाल कराया था। गैर सरकारी तंजीम यूनिलीवर और हैंड्स ने पूरे ज़िले का मुआयना किया और मुआयने के बाद उन्होंने एक गांव गाड़ों के करीब ईसा उसको चुना, जिसमें उन्होंने देखा कि 4 से 5 फीट पानी अभी तक मौजूद है। उस गाँव को उन्होंने मॉडल विलेज बनाने का फैसला किया और उस गांव को मॉडल विलेज बना के 90 खानदानों को न सिर्फ घर बना के दिए, पहले घर बना के दिया, फिर पूरा निज़ाम बना के दिया। ठीक है, अब इसकी ये इनकी चीज़ है, इनको इसकी एहतियात करनी है, इन्हीं ने इसको बेसिकली लेकर चलना है, इन्हीं ने इसको संभालना है। अब यहाँ के जो सारे जो रिहायशी हैं, अब ये उनकी चीज़ है, उन्होंने उसी का ख्याल रखना है। ठीक है, और उनको हमने सिखाया भी है कि इस तरह ख्याल रखना है। कभी कोई और जहाँ पे उनको मदद की ज़रूरत होगी, हैंड्स की टीम मौजूद है, उनको आगे बताएगी। यहाँ पे हमने यूनिलीवर के साथ मिलकर हैंड्स ने 90 के करीब घर बना के दिए हैं, किचन बना के दिए हैं, टॉयलेट बना के दिए हैं, सड़कें बनाई हैं। यहाँ पे पानी की वजह से आपको पता है कि कितनी बीमारियाँ फैल जाती हैं, तो यहाँ पे वाटर फिल्टर का हमने इंतज़ाम किया है। ज़्यादातर जो हैं वो फिशर लोग हैं, तो हमने उनको जाल दिए हैं, बकरियाँ दी हैं, रिक्शा दिए हैं और इस तरह के दूसरे एग्रीकल्चर इनपुट दिया है ताकि वो अपनी लाइवलीहुड को भी इम्प्रूव कर सकें। उनके लिए रोज़गार का बंदोबस्त किया, ख़वातीन के लिए सिलाई का सेंटर काम किया, इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल बनाया है और उसके अलावा जो वहाँ माहीगीर रहते हैं उनको जाल दिए गए हैं ताकि वो मछली का कारोबार करके अपना रोज़गार बना सके। एक ये बेहतरीन यूनिलीवर की तरफ से अमल था और एक मॉडल विलेज था जो वाकई मॉडल के तौर पे बना है और वहाँ लोगों को तमाम सहूलियात मिल गई हैं। निगरान वज़ीर सेहत कहते हैं बच्चों की सेहत के हवाले से इक़दामात ज़रूरी हैं। माँ के दूध के बारे में बाकायदा मुहिम वक्त की ज़रूरत है। दिसंबर तक इंसदादे पोलियो मुहिम जारी रहेगी। हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का कहना था कि ख़ानदानी मनसूबाबंदी वक्त की एक अहम ज़रूरत है। ज़च्चो बच्चा की सेहत के हवाले से आगाही मुहिम में साथ हैं। इस्लामाबाद से देखिए मरियम मलिक की रिपोर्ट।
वजारत सेहत की जानिब से ब्रेस्ट फीडिंग वीक से मुतालिक सेमिनार से खिताब में निगरान वफाकी वजीर सेहत डॉक्टर नदीम जान का कहना था कि माँ के दूध में बहुत सी बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मुदाफियत पाई जाती है। जच्चा और बच्चा की सेहत के लिए दरपेश चैलेंजेस का खात्मा तरजीह है। किसी भी वायरस से मुकाबला करने के लिए हमारे निज़ाम सेहत में सलाहियत मौजूद होनी चाहिए। हमने एक ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी समिट का प्लान बनाया हुआ है जो इंशाल्लाह हम पाकिस्तान में करेंगे और उसमें सारे दोस्त ममालिक की लीडरशिप आएगी। यहाँ पे बैठ के हम जो मेन इश्यूज हैं रिस्पांस के और प्रिवेंशन के, डिटेक्शन के, पैंडेमिक का एक ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी एजेंडा इधर तय होगा इस मुल्क के लिए, रीजन के लिए और दुनिया के लिए। चेयरमैन उलमाए कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का कहना था कि जच्चा और बच्चा की सेहत के हवाले से आगाही मुहिम में साथ हैं। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल डॉक्टर किबला अयाज ने भी अपनी हिमायत की यकीन दहानी कराई। कुरान ने हमें कोई हुक्म ऐसा नहीं दिया कि जिसके अंदर इफादियत ना हो। तो अगर माँ दूध पिलाएगी तो माँ भी सेहतमंद रहेगी। हमें इन चीजों को प्रमोट करना चाहिए, दीन के हवाले से भी और कानून के भी हवाले से। हम सब ने मिलकर आगे जाना है और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, सेहतमंद पाकिस्तान के लिए हम सब ने मिलकर काम करना है। सेमिनार में जय्यद उलमाए कराम समेत तिबी माहिरीन ने शिरकत की। डीजी हेल्थ बसीर अचकसई का कहना था कि बच्चे की सेहत के लिए माँ का दूध कम से कम 2 साल तक पिलाना बहुत जरूरी है। सेहत के शोबों में कुछ बेहतरी आई है लेकिन सहूलियात को मजीद बेहतर बनाने की जरूरत है। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है और आज के दौर जदीद में आबादी मुल्क के मसाइल और वसाइल पर बहुत असरअंदाज होती है। आबादी में इजाफे से वसाइल में तवाज़ुन रखना भी इंतहाई मुश्किल होता जा रहा है। इसी हवाले से बात करते हैं। समाजी कारकुन माजिदा फहमी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रही हैं। माजिदा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आबादी में तेज़ी से इजाफे से बुनियादी सहूलतों की जो फराहमी है यकीनी तौर पर इससे मुश्किलात पैदा होती हैं। इसकी रोकथाम से आपके ख्याल में मुआशरे में क्या मुस्बत तब्दीलियाँ रूनुमा हो सकती हैं, ख़ास तौर पर अगर हम एजुकेशन सेक्टर की बात करते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं जैसे जैसे आबादियाँ बढ़ती जा रही हैं वैसे वैसे हमारे वसाइल कम होते जा रहे हैं और हमारे बच्चों का मयार तालीम वो नहीं है जो शायद इससे पहले कहीं हम अपने बच्चों को दे पाते थे। बिल्कुल भी आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। जैसे हमारी आबादी बढ़ती जा रही है वैसे ही हमारे वसाइल भी कम होते जा रहे हैं और मुख्तलिफ सेक्टर्स में जो है ना हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। स्पेशली एजुकेशन में देखा जाए तो हमारा एजुकेशन का जो बजट है फॉर एजुकेशन वो सिर्फ 1.7% है और इसमें इतने तमाम यूथ को जो है ना एजुकेट करना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन जहाँ पे इतने सारे मसाइल है वहाँ पे हमारे पास कुछ अच्छे भी पॉइंट्स है जहाँ पे हम अपनी जो अफरादी कुव्वत है उसको अगर हम उसका माशी इस्तेमाल करना सीखें कि अगर हमारे पास लेबर फोर्स है तो उसको हमने यूटिलाइज कैसे करना है, उनसे काम कैसे करवाना है। तो ये अगर हम सीख लें तो हम अपने इस यूथ को यूटिलाइज करते हुए दीगर जो ममालिक है जैसे चाइना है, जैसे इंडिया है, वो जिस तरह से अपनी लेबर को यूज़ करते हुए आगे जा रही है वैसे हम भी आगे जा सकते हैं। और इसमें सिर्फ ये नहीं है कि हमने जो है ना यहाँ पे रह के अपनी आबादी को यूटिलाइज करना है, बल्कि हमें चाहिए कि हम अपने यूथ को पूरी दुनिया में भेजें, मुख्तलिफ ममालिक में भेजें, जाके वो एक्सप्लोर करें, मुख्तलिफ कल्चर्स के साथ मिलें और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें। तो इससे जो है ना हमारा थोड़ा सा पाकिस्तान का भी बेहतर इमेज हो सकता है। अच्छा माजिदा, चूँकि आप एक मारूफ समाजी कारकुन हैं, तालीमी शोबे से वाबस्ता हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं, आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से देखती होंगी, चैलेंजेस को। अब एक तरफ आबादी का बेहंगम बढ़ना है, तकरीबन हम 24 करोड़ क्रॉस कर ही चुके हैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ी आबादी चाइना के पास है, उसके बाद इंडिया के पास है, उसके बाद अमेरिका के पास है, उसके बाद इंडोनेशिया के पास है, उसके बाद हमारे पास है। 5वें नंबर पर हैं हम। लेकिन जिन टॉप 3 का मैंने नाम लिया उनके पास वसाइल भी बेशुमार हैं और वो इनको कोप अप कर सकते हैं। लेकिन हम जैसा मुल्क जिसके वसाइल भी महदूद हैं और मसाइल इसलिए बढ़ रहे हैं कि बेहंगम आबादी है, ये बहुत मुश्किल है। किस तरह से हम अपने तालीमी निज़ाम को अप टू द मार्क कर सकते हैं? कुछ सजेशन है आपके पास कि किस तरह से हम बेहतरी ला सकते हैं इस एक चैलेंज को मद्देनजर रखते हुए? बिल्कुल जी, मैंने इसी मौजू के ऊपर एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया है जो कि हमारे जो 22 मिलियन आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है उनके लिए एक प्रोग्राम है जिसमें 3 चीज़ों पे फोकस किया जा रहा है। पहली चीज़ तो हमें उनको सिखानी है कि डिजिटल लिटरेसी क्या चीज़ है। बुनियादी लिटरेसी के बाद जब आप उनको पढ़ना लिखना सिखाते हैं तो उसके बाद आपने उनको डिजिटल लिटरेसी सिखाया और उसके साथ ही आपने कैरेक्टर डेवलपमेंट कर दी। अगर यही 3 मौजूओं को अगर हम 2 साल के अंदर एक
اچھے کورس اور اچھے پروگرام کی صورت میں لانچ کرتے ہیں ہر صوبے میں، ہر اسکول میں، ہر گلی گلی کوچے میں، تو مجھے لگتا ہے کہ 2 سال کے اندر اندر ہم اپنی بہت بڑی ایک تعداد جو یوتھ کی ہے ان کو ہم جو کہ بالکل یوز لیس ہے ان کو یوز میں لا سکتے ہیں، ان کو اکانومی کے اندر لا سکتے ہیں، ان کو ڈیجیٹل ورلڈ کے اندر ایک انٹری دے سکتے ہیں جہاں سے وہ خود آگے بڑھ کے سیکھ سکتے ہیں۔ یہ تو ہم نے اپنی طرف سے ایک پلان بنائی ہوئی ہے، اس پلان میں ہمیں ہیلپ چاہیے ہوتی ہے گورنمنٹ کی، مختلف آرگنائزیشنز کی جو اس سے ہمارا ساتھ دیں، تو اس پہ ہم لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ۔ اور بھی اگر کوئی ادارے ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہمیں ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں، جس سے ہم پاکستان کی اس جو یوتھ ہے ان کو یوٹیلائز کرنے کے لیے کچھ طریقے نکال سکیں۔ ماجدہ آخر میں یہ بتا دیجیے گا آپ، کیونکہ بچوں کی تعلیم کے حوالے سے اور خاص طور پر جو فٹ پاتھ چائلڈ ہے ان کو پڑھانے کے حوالے سے آپ کی خاصی اس حوالے سے جو ہے وہ خدمات رہی ہیں ہمارے ملک کے اندر، اگر ہم ایک فگر آؤٹ کر سکے اس چیز کو کہ کتنے ایسے بچے ہیں جو خاص طور پر ابھی تک تعلیم کے میدان سے محروم ہیں، اور جیسے جیسے معاملات بڑھتے جا رہے ہیں، آبادی بڑھتی جا رہی ہے، یہ فگر جو ہے یہ بھی مزید بڑھتا جا رہا ہے۔ بالکل جی، 22 ملین جو ہے نا ہمارے پاس ایسے بچے ہیں جو اسکول کے باہر ہیں، اور اس میں بھی جو اسکولس میں جاتے ہیں ہمارے پاس کوئی 50% سے بھی لیس 45% جو اسٹوڈنٹ اسکول میں جاتے ہیں وہ پرائمری لیول تک پہنچنے سے پہلے 25% ڈراپ آؤٹ ہو چکے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں بہت سارے ایسے مسئلے ہیں۔ تو ان سب کو سیٹ کرنے کے لیے ٹیکنالوجی ہی سولوشن ہے۔ اگر ٹیکنالوجی کو ہم اگر انڈیا کو دیکھیں، جاپان کو دیکھیں اور چائنا کو دیکھیں، اور ان کی طرح اگر ہم ٹیکنالوجی کو جتنی جلدی اڈاپٹ کر سکیں اپنے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس میں، تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں ہمیں وسائل کی بھی اتنی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پھر ایک ڈیجیٹل ورلڈ میں آپ کو بھی معلوم ہے کہ بہت زیادہ وسائل حاصل بھی کیے جا سکتے ہیں اور بہت زیادہ ویلیو کریٹ کیا جا سکتا ہے۔ جہاں تک اس میں ہم اپنا پاکستان کے دیکھتے ہیں تو علامہ اقبال کے ایک بہت مشہور وہ ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ابھی ہمیں اس بات کو سنجیدگی سے لینا چاہیے کہ صرف ملک میں رہتے ہوئے نہیں، بلکہ ہمارے بانی پاکستان نے جو ہمیں ویژن ایک ڈریم دیا ہوا ہے کہ آپ نے صرف اس ملک میں نہیں رہنا، آپ نے آگے اور چیزیں بھی ایکسپلور کرنی ہے۔ تو اب ہمارا جو چائنا ہے، انڈیا ہے، یہ سارے اسپیس ایکسپلوریشن اس پہ جا رہے ہیں، تو ہم کیوں نہیں جا سکتے؟ ہمیں بھی اس تمام چیزوں کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم یوٹیلائزیشن کریں، ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کریں اور آگے بڑھیں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ماجدہ فہمی، سماجی کارکن، آپ ہمارے ساتھ موجود تھی، آپ کے وقت کے لیے۔ ناظرین، سپریم کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی توشہ خانہ کیس میں دائر اپیلوں پر سماعت کل تک ملتوی کر دی ہے۔ چیف جسٹس سمنت منیال کہتے ہیں کہ ہم آج سیشن جج کے فیصلے میں مداخلت نہیں کر رہے، کل ہائی کورٹ میں سماعت کے بعد دن 1 بجے سپریم کورٹ سماعت کرے گی۔ نامزد چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہتے ہیں کہ آزادی اظہار رائے ہر شہری کا بنیادی حق ہے، مثبت صحافت معاشرے پر اچھا تاثر قائم کرتی ہے۔ سپریم کورٹ پریس ایسوسی ایشن کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ ذمہ دارانہ صحافت وقت کی ضرورت ہے، میڈیا کا بنیادی مقصد عوام تک درست معلومات پہنچانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خبر اور رائے میں فرق ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ صحافت کی طرح عدالتیں بھی سچ کی تلاش میں رہتی ہیں، عدالتوں نے سچائی کو آئین اور قانون کی کسوٹی پر پرکھنا ہوتا ہے۔ دین اسلام میں مسلمان کی سب سے بڑی نشانی بتائی گئی ہے کہ وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ نگراں وزیر مملکت سیاحت وسیع شاہ نے کہا ہے کہ پاکستان قدیم تہذیبوں کا امین اور جنت نظیر وادیوں کا دیس ہے، ہمیں اپنے ثقافتی ورثے کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام آباد میں پی ٹی ڈی سی کے دورے پر وزیر مملکت نے کہا کہ پاکستان میں اندرونی اور بیرونی سیاحت کے فروغ کے وسیع مواقع ہیں۔ انہوں نے ملک کی سیاحت کے فروغ کے لیے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے عزم کا اظہار کیا۔ اس موقع پر وزیر مملکت کو ادارے سے متعلق امور پر بریف کیا گیا۔ اور یہاں ایک بریک، جس کے بعد آپ دیکھ سکیں گے عربی خبریں۔